کفارے کے دن کی مبارک عبادت آ گئی ہے۔ آئیں ہم اکٹھے خدا کے کلام کا مطالعہ واضح عنوان آسمان کی بادشاہی اور توبہ کے تحت کرتے ہیں۔ یہ کفارے کے دن کی سپہر کی عبادت ہے۔ سب سے بڑھ کر ہم آسمانی باپ اور آسمانی ماں کو شکر اور جلال دیتے ہیں جنہوں نے ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا۔ خدا کے فضل سے اس کفارے کے دن کے وسیلہ ہم صیون کے فرزندوں کے تمام گناہ مکمل طور پر معاف ہو گئے ہیں، بشمول وہ گناہ بھی جو ہم نے نادانستہ طور پر کیے ہیں، وہ گناہ جو ہم نے آسمان پر کیے تھے، وہ گناہ جو ہم نے اس زمین پر کیے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ گناہ بھی جو ہمیں یاد بھی نہیں ہیں۔ اس طرح سے ہم پاک صاف ہو کر برف سے زیادہ سفید ہو سکتے ہیں اور اپنے ابدی آسمانی گھر کو لوٹ سکتے ہیں۔ اس دن کے لیے جب ہم خدا کے حضور کھڑے ہوں گے، آئیں ہم اپنے دلوں پر گہرائی سے خدا کے کلام کو کندہ کریں جو ہمیں اپنے ایمان کو بے عیب اور بے داغ رکھنے کی تعلیم دیتا ہے۔ باپ اور ماں کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہم محبت، اتحاد، ہم آہنگی، برداشت اور صبر کے ساتھ آخر تک صلیب کی راہ پر چلیں تاکہ ہم یقیناً آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکیں۔ متی باب 4 آیت 17 کی طرف جاتے ہیں۔ آیت 17 دیکھتے ہیں۔ اس وقت سے یسوع نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ جب ہم ان کے کلام کا جائزہ لیں تو ہم تصدیق کر سکتے ہیں کہ ہمارے آسمان کی بادشاہی چھوڑنے اور اس زمین پر آنے کی کوئی وجہ تھی۔ کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے لیے آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے توبہ نہایت ضروری ہے؟ ہم سب کو آسمان کی بادشاہی میں جانا چاہیے۔ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے ہمیں آسمان میں اپنے کیے گئے گناہوں اور اس زمین پر دانستہ اور نادانستہ طور پر کیے گئے تمام گناہوں اور خطاؤں سے مکمل طور پر توبہ کرنی چاہیے تاکہ ہم نئی مخلوق کے طور پر نئے سرے سے پیدا ہو سکیں جو آسمانی باپ اور آسمانی ماں کو خوش کر سکیں۔ آئیں ہم کتاب مقدس سے اس معاملے کے بارے میں کچھ آیات دیکھتے ہیں۔ پہلے ہم سب مل کر پہلا یوحنا باب 1 کھولتے ہیں اور خدا کی تعلیم کا جائزہ لیتے ہیں کہ کیوں ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلا یوحنا کی کتاب کے پہلے باب سے دیکھتے ہیں۔ باب 1 آیت 8۔ اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں اور ہم میں سچائی نہیں۔ اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ اگر کہیں کہ ہم نے گناہ نہیں کیا تو اسے جھوٹا ٹھہراتے ہیں اور اس کا کلام ہم میں نہیں ہے۔ یہ لکھا ہے کہ اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں۔ ہم نے آسمان پر گناہ کیا تھا اور حتیٰ کہ اس زمین پر بھی ہم نے دانستہ اور نادانستہ طور پر گناہ کیے ہیں۔ نیز ایسے گناہ بھی ہوں گے جنہیں ہم بھول گئے ہیں۔ در حقیقت ہم خدا سے یہ کہنے کی حالت میں نہیں ہیں کہ ہم بے گناہ ہیں۔ کتاب مقدس اور انبیاء ہمیں مسلسل یاد دلاتے ہیں کہ ہم پیشتر ہی آسمان پر گناہ کر چکے ہیں۔ ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے مسیح اس زمین پر آئے، صلیب کا درد سہا، ذلت برداشت کی اور موت کے لمحہ تک دکھ اٹھایا۔ کتاب مقدس بار بار بیان کرتی ہے کہ ایسے تکلیف دہ نتائج کی وجہ تمہارے گناہ اور تمہاری خطائیں ہیں۔ تاہم وہ جو اپنے گناہوں کو یاد نہیں رکھتے، شاید وہ کہیں میں بے گناہ ہوں، میں نے آج تک راست بازی سے زندگی گزاری ہے۔ لیکن خدا کہتے ہیں کہ آسمان پر گناہ کرنے کے بعد اور اس زمین پر آنے کے بعد اگر تم کہو کہ تم نے گناہ نہیں کیا تو تم اپنے آپ کو فریب دیتے ہو اور تم میں سچائی نہیں۔
तुम खुदा को झूठा ठहराते हो। आए इकट्ठे लूका बाब 5 खोलते हैं। लूका बाब 5 आयत 30। और फरीसी और उनके फकी उसके शागिर्दों से ये कहकर बुड़बुड़ाने लगे कि तुम क्यों महसूल लेने वालों और गुनाहगारों के साथ खाते पीते हो। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि तंदुरुस्तों को तबीब की जरूरत नहीं बल्कि बीमारों को। मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनाहगारों को बुलाने में उनका क्या मकसद है? तौबा के लिए बुलाने आया हूँ। यीशु इस जमीन पर रास्तबाजों को बुलाने नहीं आए थे बल्कि गुनाहगारों को तौबा के लिए बुलाने आए थे। हम लूका बाब 19 की तरफ जाते हैं और खुशखबरी का काम देखते हैं जो खुदा ने इस जमीन पर बनी नौ इंसान को बचाने के लिए अंजाम दिया था। हम लूका बाब 19 की तरफ जाते हैं। लूका बाब 19 आयत 10 में यीशु कहते हैं कि क्योंकि इब्ने आदम, क्या इब्ने आदम से मुराद यीशु नहीं है? यीशु इस जमीन पर क्यों आए थे? खोए हुओं को ढूंढने और क्या करने? निजात देने आया है। क्या वजह है कि वो जिस्म में जमीन पर आए थे? आखिरकार वो हमें तौबा की तरफ ले जाने के लिए आए थे। दूसरे अल्फाज में, इस जमीन पर आने से पहले हम आसमान की बादशाही में किस किस्म की मखलूकात थे? क्या ये वाज़े नहीं कि हम इस जमीन पर कुछ ऐसा करने के बाद आए हैं जिससे हमें तौबा करने की जरूरत है? क्योंकि हमने आसमान पर गुनाह किया था और इस जमीन पर आए थे। तो यीशु ने कहा कि वो इस जमीन पर गुनाहगारों को तौबा के लिए बुलाने आए हैं। किताब मुकद्दस के ये तमाम अल्फाज खुदा की हकीकी तालीमात हैं। हकीकत ये है कि हम अपनी आसमानी यादें भूल चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमें ये कहने की इजाजत है कि मैं एक रास्तबाज शख्स हूँ जिसने कोई गुनाह नहीं किया। इसके बजाय एक बार फिर ये महसूस करते हुए कि आसमान पर हमारा माजी ऐसा गुनाह भरा था, हमें किताब मुकद्दस की तालीमात को वैसे ही कबूल करना चाहिए जैसी वो हैं। बस तौबा का पुरफजल काम अंजाम पाना चाहिए ताकि हम उन तमाम गुनाहों की मुकम्मल तौर पर माफी पा सकें जो हमने आसमान पर करने के साथ साथ जमीन पर भी किए हैं। किताब मुकद्दस की तमाम अनाजील में तौबा के बारे में कई इजहार बयान मौजूद हैं। मती बाब 3 आयत 1 देखते हैं। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और यहूदिया के बियाबान में ये मुनादी करने लगा कि उसने क्या कहा था? तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस जमीन पर एलिया के खास काम के साथ आया था। वो यीशु के लिए राह तैयार करने के लिए भेजा गया था। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने मुनादी की थी तो पहली चीज जिसका उसने ऐलान किया था वो ये था कि तौबा करो। इस मामले के हवाले से खुदा मुकाशफा बाब 3 में कहते हैं कि सरगर्म हो और तौबा कर, और मुकाशफा बाब 2 में कहते हैं तौबा कर। किताब मुकद्दस में ऐसे कई इंदराजात हैं जो हमें तौबा करना सिखाते हैं। ये एक अजीम काम था जिसे कादर मुतलिक खुदा बड़ी शिद्दत से पूरा करना चाहते थे, हत्ता कि वो इस काम के लिए जिस्म में इस जमीन पर आए थे। जब इब्ने आदम ने इस जमीन पर अपने आने की वजह बयान की तो उन्होंने कहा कि ये मोजज़े दिखाने और लोगों के दिलों को जीतने के लिए नहीं था, बल्कि उन्होंने खोए हुओं के साथ क्या करने का इरादा किया था? उन्होंने कहा, मैं इस जमीन पर उन्हें बचाने आया हूँ। यूं उन्होंने सबसे अजीम काम का नमूना कायम किया। हम इकट्ठे मरकस बाब 1 की तरफ जाते हैं ताकि देखें कि उन्होंने कैसे नमूना कायम किया था। मरकस बाब 1 आयत 35। और सुबह ही दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और एक वीरान जगह में गया और वहां दुआ की, और शमौन और उसके साथी उसके पीछे गए। और जब वो मिला तो उससे कहा कि सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास के शहरों में चलें ताकि मैं वहां भी मुनादी करूं, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूं।
लूका बाब 19 आयत 10 में उन्होंने कहा कि वो खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आए थे, और मरकज की अंजील में उन्होंने कहा कि वो मुनादी करने आए थे। जब हम इन अल्फाज का बगौर जायजा लें तो बनी नौ इंसान की निजात के लिए सबसे अहम और अजीम तरीन काम क्या है? चूंकि हमने आसमान पर बेशुमार गुनाह किए और इस जमीन पर आ गए तो हमें तौबा की जरूरत है। तो फिर हमें अपने आप से पूछने की जरूरत है कि हमें तौबा के लिए क्या करना चाहिए। आज हम इसका जवाब मालूम करते हैं। हम लूका बाब 15 की तरफ जाते हैं। आए हम खुदा का कलाम बाब 15 आयत 7 से देखते हैं। लूका बाब 15 आयत 7, मैं तुमसे कहता हूं कि इसी तरह 99 रास्तबाजों की निस्बत जो तौबा की हाजत नहीं रखते, एक तौबा करने वाले गुनाहगार के बाइस आसमान पर ज्यादा खुशी होगी। खुदा हमें कहते हैं तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है, और हमें यह भी सिखाते हैं कि 99 रास्तबाजों की निस्बत जो तौबा की हाजत नहीं रखते, एक तौबा करने वाले गुनाहगार के बाइस आसमान पर ज्यादा खुशी होगी। आयत 10 की तरफ जाते हैं। बाब 15 आयत 10 में यस्सु कहते हैं कि मैं तुमसे कहता हूं कि इसी तरह एक तौबा करने वाले गुनाहगार के बाइस आसमान के फरिश्तों के सामने खुशी होती है। वो इसी बात को आयत 10 में बयान करते हैं। चूंकि आसमान की बादशाही में दाखिल होने के लिए तौबा निहायत जरूरी है, इसलिए लफ्ज तौबा नए अहदनामे में कई जगहों पर जाहिर होता है। हम आसमान की बादशाही में कुछ करने के बाद इस जमीन पर आए थे। यसु इस जमीन पर आए ताकि हमें बेदार करे कि हमने आसमान पर क्या किया, ताकि हम उससे तौबा कर सकें। जो कुछ इस जमीन पर है वो सब कुछ नहीं है। आसमान की बादशाही वो जगह है जिससे हमारा हकीकी ताल्लुक है, और हमें वहाँ लौटना है। उन तमाम औकात को याद रखने में हमारी मदद करने की गर्ज से जो हमने खुदा के साथ बागे फजल में गुजारे थे, वो इस जमीन पर आए और हमारी रहनुमाई तौबा की तरफ की, ताकि हम आखिर में उस जहान में वापस जा सकें। मती बाब 4 आयत 17 में भी यही लिखा है, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। शायद आप सोचें मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, लेकिन जब भी मैं चर्च आता हूँ तो मैं तौबा करें, आप एक गुनाहगार हैं जैसी बातें सुनता हूँ, और इससे मुझे कुछ अजीब सा महसूस होता है। लेकिन खुदा सिर्फ उन गुनाहों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं जो आपने इस दुनिया में किए हैं। पिछली दुनिया में जहाँ से यस्सु आए थे, हम पहले ही कुछ ऐसा कर चुके थे जिसके लिए हमें तौबा की जरूरत है, और हम इस जमीन पर आ चुके हैं, और यस्सु हम पर इस हकीकत को बेदार करने और तौबा की तरफ हमारी रहनुमाई करने आए थे। इसलिए किताब मुकद्दस उनके आने के मकसद और वजह को गुनाहगारों को तौबा की तरफ ले जाने के तौर पर बयान करती है। इसलिए जब हम यसाया बाब 53 और 50 पर गौर करें तो ये हमें सिखाती है कि तुम्हारी खताओं के सबब से तुम्हारी माँ को छोड़ दिया गया, और तुम्हारे गुनाहों के सबब से तुम्हारे बाप को नेज़े से छेदा गया और कोड़े मारे गए। ताहम ऐसे वाकयात रूनुमा होने के बाद आप शिफा पा सकते थे। यसाया नबी ने यूं नबूवत की थी, आप सब सिर्फ सलीब पर मसीह की कुर्बानी पर तवज्जो देने की बजाय हमें पहले यह गौर करने की जरूरत है कि ऐसा वाकया पहले क्यों रूनुमा होना था। यह महज इसलिए नहीं हुआ था कि हमने जमीन पर कुछ ऐसा किया था, बल्कि चूंकि पिछली दुनिया में मसाइल पहले ही जाहिर हो चुके थे, इसलिए खुदा ने बयान किया कि उनके इस जमीन पर आने की वजूहात और मकासिद में से एक आसमान पर गुनाह करने वाली रूहों की रहनुमाई तौबा की तरफ करना था। हम सबको खुदा के फजल से मुलब्बस होने और आसमान की बादशाही में दाखिल होने के लिए वाकई हर जगह सच्ची तौबा करनी चाहिए। तौबा खुदा को धोखा देने के गुनाह, खुदा की तालीमात, फरमान और ज़वाबत और आइन को नजरअंदाज करने के गुनाह और नाफरमानी के गुनाह से बाज आना है।
हमें इन तमाम गुनाहों से मुंह मोड़ते हुए अपने दिलों को खुदा की तरफ फेरना चाहिए। क्या ये सच्ची तौबा नहीं है? यसाया बाब 59 की तरफ जाते हैं। आएं यसाया बाब 59 आयत 1 से खुदा का कलाम देखते हैं। बाब 59 आयत 1। देखो, खुदावन का हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा ना सके, और उसका कान भारी नहीं कि सुन ना सके, बल्कि तुम्हारी बदकिरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है। ये हमारी बदकिरदारी थी जिसने हमें खुदा से जुदा कर दिया था। तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है। इन अल्फाज का क्या मतलब है? सादा अल्फाज में कहें तो खुदा के साथ हमारा करीबी ताल्लुक खत्म हो गया था, बल्कि तुम्हारी बदकिरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है, और तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रुपोश किया, ऐसा कि वो नहीं सुनता, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से और तुम्हारी उंगलियां बदकिरदारी से आलूदा हैं। तुम्हारे लब झूठ बोलते और तुम्हारी जुबान शरारत की बातें बकती है। चूंकि आपके गुनाहों ने आपको खुदा से जुदा किया है, इसलिए आपको खुदा के हजूर आना चाहिए, अपने गुनाहों का इकरार करना और इनसे तौबा करनी चाहिए और तौबा की जिंदगी गुजारनी चाहिए। मसीह इस जमीन पर आए और मुसलसल इस बात पर जोर दिया था। मसीह ने कहा, क्या आप जानते हैं कि मैं इस जमीन पर क्यों आया था? मैं इस जमीन पर गुनाहगारों को तौबा के लिए बुलाने आया हूँ। मती बाब 4 में वो कहते हैं कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। नीज किताब मुकद्दस में ये लिखा है कि अगर वो बाज ना आए तो खुदा अपनी तलवार तेज कर लेंगे। किताब मुकद्दस बगैर किसी हिचकिचाहट के ऐसे खौफनाक अल्फाज दर्ज करती है। आएं जबूर बाब 7 पर एक नजर डालते हैं। आएं खुदा के कलाम को जबूर बाब 7 आयत 12 से देखते हैं। जबूर बाब 7 आयत 12। अगर आदमी बाज ना आए तो वो अपनी तलवार तेज करेगा। उसने अपनी कमान पर चिल्ला चढ़ाकर उसे तैयार कर लिया है। उसने उसके लिए मौत के हथियार भी तैयार किए हैं। वो अपने तीरों को आतिशी बनाता है। तौबा ना करने वालों के साथ खुदा क्या करेंगे? आएं दूसरा थस्सलुनीकियों की किताब बाब 1 आयत 7 देखते हैं। बाब 1 आयत 7 में ये लिखा है कि और तुम मुसीबत उठाने वालों को हमारे साथ आराम दे। जब खुदावन यस्सु अपने कवि फरिश्तों के साथ भड़कती हुई आग में आसमान से जाहिर होगा, और जो खुदा को नहीं पहचानते और हमारे खुदावन यस्सु की खुशखबरी को नहीं मानते, उनसे बदला लेगा। वो कौन हैं जो खुशखबरी को नहीं मानते? खुशखबरी की फर्माबरदारी ना करने वाले लोग वो हैं जो तौबा नहीं करते। ये वो हैं जो खुदा की तरफ रुजू नहीं करते। ईद फसा के वसीला मेरी तरफ रुजू लाओ, सबत के दिन के वसीला मेरी तरफ रुजू लाओ। हम कैसे आपकी तरफ रुजू ला सकते हैं? बराह करम हमें तौबा करने का तरीका बताएं। इसीलिए खुदा ने खुशखबरी के वसीला बनी आदम को अपनी तरफ रुजू लाने की राह से बेदार किया था। तो फिर खुशखबरी की फर्माबरदारी ना करने वाले क्यों सजा पाएंगे? इसकी वजह यह है कि उन्होंने तौबा नहीं की है। खुदा ने हमें तौबा का मौका, तौबा का वक्त बख्शा और तौबा की शराइत फराहम की हैं। उन्होंने 1500 सालों के तवील अरसा में बेशुमार सख्तियां बर्दाश्त की, और अपने खून से उन्होंने इस जमीन पर नए अहद की कामिल सच्चाई कायम की। वाकई हम आसमान की बादशाही में बगैर किसी कीमत के जा रहे हैं। आसमानी बाप और आसमानी माँ ने हमारी तरफ से तमाम दर्द, दुख और गम बर्दाश्त किए हैं। आज हम कफारे के दिन पर इन सब बातों पर गौर करें तो हमें ना सिर्फ कफारे के मफहूम को कबूल करना चाहिए, बल्कि उस कुर्बानी पर भी गौर करना चाहिए जो खुदा ने हमारे लिए बर्दाश्त की थी। सच्ची तौबा के दिल के साथ हमें खुदा के हजूर हाजिर होना चाहिए और ऐसी जिंदगी गुजारने की कोशिश करनी चाहिए जो रास्तबाजी की राह पर चलती है, जो खुदा हमारे लिए चाहते हैं।
आए हम किताब मुकद्दस से तौबा के बारे में कुछ और अल्फाज तलाश करना जारी रखते हैं। लूका की किताब बाब 13 की तरफ जाते हैं। लूका बाब 13 आयत 3 से खुदा का कलाम देखते हैं। लूका बाब 13 आयत 3 में यीशु कहते हैं कि मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, बल्कि अगर तुम तौबा ना करोगे तो सब इसी तरह। ऐसे लोगों के साथ क्या होगा? हलाक हो गए। या क्या वो 18 आदमी जिन पर शेलोह का बुर्ज गिरा और दबकर मर गए, तुम्हारी दानिश में यरूशलेम के और सब रहने वालों से ज्यादा कसूरवार थे? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, बल्कि अगर तुम तौबा ना करोगे तो सब इसी तरह हलाक हो गए। जहां तौबा नहीं वहां हलाकत ही है। यीशु ने अपनी तालीमात में बारहा इस पर जोर दिया था। मुकाशफा की किताब बाब 2 की तरफ जाते हैं। मुकाशफा बाब 2। मुकाशफा की किताब बाब 2 आयत 4 से देखते हैं। मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। बस ख्याल करके तू कहां से गिरा है और तौबा करके पहले की तरह काम कर। और अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। खुदा के कलाम के मुताबिक अगर हम तौबा ना करें तो निजात के चिरागदान के साथ क्या होगा? इसे किसी और जगह मुंतकिल कर दिया जाएगा। खुदा ने हमें बहुत अहम अल्फाज बख्शे हैं। आयत 21 की तरफ जाते हैं। बाब 2 आयत 21। आए हम बाब 2 आयत 21 से देखते हैं। मैंने उसको तौबा करने की मोहलत दी, मगर वो अपनी हरामकारी से तौबा करना नहीं चाहती। देख, मैं उसको बिस्तर पर डालता हूँ, और जो उसके साथ जिना करते हैं अगर उसके से कामों से तौबा ना करें तो उनको बड़ी मुसीबत में फंसाता हूँ, और उसके फर्जंदों को जान से मारूंगा। और सब कलीसियाओं को मालूम होगा कि गुर्दों और दिलों का जांचने वाला मैं ही हूँ, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के मुआफिक बदला दूंगा। आप सब, ऐसा लगता है कि किताब मुकद्दस में सिर्फ उम्दा, नरम और खूबसूरत अल्फाज मौजूद हैं, लेकिन खुदा अपनी बेरहमी भी जाहिर करते हैं, खासकर उनके लिए जो तौबा नहीं करते। जैसा कि हम देखते हैं कि उन्होंने ऐसा संजीदा इजहार बयान इस्तेमाल किया। आए हम हमेशा इस हकीकत के लिए नदामत और शुक्रगुजारी का दिल रखें कि हम गुनहगार हैं, और ये कि खुदा ने हमारे गुनाह अपने ऊपर उठा लिए हैं। वो गोलगोता के पहाड़ पर गए और हमारी खातिर सलीब पर कील ठोंके जाने के दर्द और तकलीफ को बर्दाश्त किया। आए तीतुस की किताब का पहला बाब भी खोलते हैं। तीतुस बाब 1। आए तीतुस बाब 1 आयत 2 से देखते हैं। तीतुस बाब 1 आयत 2 में ये लिखा है कि उस हमेशा की जिंदगी की उम्मीद पर जिसका वादा अजल से खुदा ने किया है, जो झूठ नहीं बोल सकता, और उसने मुनासिब वक्तों पर अपने कलाम को, खुदा ने इसे कैसे जाहिर किया है? उस पैगाम में जाहिर किया जो हमारे मुनज्जी खुदा के हुक्म के मुताबिक मेरे स्पुर्द हुआ। आप सब, आए हम एक बार फिर अपना जायजा लें कि क्या हम उन कामों को नजरअंदाज कर रहे हैं जो बाप और माँ ने हमें सौंपे हैं। क्योंकि बाप और माँ ने हमें अपने अजीम काम में शरीक होने के लिए बुलाया है, तो हम सब अपनी हर मुमकिन कोशिश करें ताकि हम इस मुबारक साल में सारी दुनिया पर कसरत से खुदा के जलाल को जाहिर कर सकें। इसके अलावा आसमानी खानदान के अराकीन के तौर पर हम ये अज़म कर लें कि हम आइंदा हरगिज़ गुनाह के गुलाम या गुनाह में मुलव्विस नहीं होंगे, ताकि हम नेक सामरी की तरह ईमानदारी से दुनिया के नमक और नूर का किरदार अदा कर सकें। दूसरा थिमोथियस की किताब बाब 4 से भी देखते हैं।
آئیں دوسرا تھیموتھیوس باب 4 آیت 1 سے خدا کی تعلیم دیکھتے ہیں۔ دوسرا تھیموتھیوس باب 4 آیت 1 میں یہ لکھا ہے کہ خدا اور مسیح یسوع کو جو زندوں اور مردوں کی عدالت کرے گا گواہ کر کے اور اس کے ظہور اور بادشاہی کو یاد دلا کر میں تجھے تاکید کرتا ہوں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ خدا کی بادشاہی کے پیش نظر ہمیں خدا کے کلام کی منادی کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ میں تجھے یہ تاکید کرتا ہوں کہ تو کلام کی منادی کر، وقت اور بے وقت مستعد رہ۔ صاف لفظوں میں کہیں تو وقت اور بے وقت سے مراد ہر وقت یا صورتحال سے قطع نظر ہے۔ نہ صرف موقع ملنے پر بلکہ ہر وقت کلام کی منادی کریں۔ خدا اپنے آسمانی لوگوں کو اعلیٰ ترین برکت بخشنا چاہتے ہیں۔ کفارہ کے دن کے ذریعے ہم واضح طور پر سمجھیں کہ یسوع نے کیوں کہا توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، اور کیوں انہوں نے سب سے پہلے سب قوموں کو بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کی تھی۔ مجھے امید ہے کہ ہم نئے عہد کے تمام قوانین، آئین و فرمان اور باپ اور ماں کے حکم کی مکمل طور پر فرما برداری کر سکتے ہیں تاکہ ہم سچی توبہ کرنے والے آسمانی فرزند بن سکیں جو وفاداری سے آخر تک ان کی پیروی کرتے ہیں جہاں کہیں وہ جائیں۔ آپ نے 10 دنوں تک ہر صبح و شام دعا مانگنے کی بہت کوشش کی ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے تمام آسمانی خاندانی اراکین خدا کے کلام کی فرما برداری کے ساتھ توبہ کی زیادہ خوبصورت زندگی گزاریں گے۔ اس کے ساتھ میں وعظ کو ختم کرنا چاہوں گا۔ آپ کا شکریہ۔